Okay. So we have seen last time that whenever the projectile is thrown at some angle with the horizontal, like U, जिसका एग्जांपल है बास्केटबॉल या वॉलीबॉल या कोई भी जो बॉल होता है, तो वो जब इस तरह से थ्रो किया जाता है एक सुटेबल एंगल पे, तो उस केस में क्या होता है ना कि उसका जो मोशन है तो वो इस तरह से बनता है. इट टेक्स अ कर्व्ड पाथ लाइक दिस, राइट? It moves along this curved path in this way, and because of that we can see clearly that the initial velocity here is denoted by u. इसको हमने initial velocity बोला था, और final velocity जो है तो उसको हम v बोल देते हैं. And u can be resolved in two components, one of which is going to be ux and other one is going to be uy. Okay, and v also can be resolved into two components, one of which is vx and other one is going to be vy, correct? And also we have seen that the horizontal distance traveled by the body is going to be this x, and the vertical distance traveled by the body is going to be actually y, right? Okay, and the acceleration of this whole system or the body is always going to be downwards, and that's why it is to be taken as minus g, correct here? So this is the acceleration of this body which is in the downward direction always. Yes, so what happens in case of the horizontal motion? We have seen last time that there is no acceleration in the horizontal motion. Why? Because the force, no, there is no force acting on the body in the horizontal direction. The gravitational force is acting in a vertically downward direction, and that's why this force produces the acceleration also in the downward direction, and that's why there is no acceleration in the horizontal direction, which means that there is no the horizontal velocity of the body remains constant, remember. So the body is moving horizontally with the constant velocity, which is taken as this ux here. तो ux इस स्पीड से वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है, और ये भी हमने समझा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन इसको बोला जाता है. Motion of the body is called to be the uniform one. Why? Because velocity is constant in the horizontal direction, that's why. And displacement equal to velocity into time. This equation can be used in this case, which have when we use this here. So horizontal direction में displacement कितना है बॉडी का? ये देखो, ये x ही इसका displacement है horizontal direction में, जो कि इस ux और टाइम t के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा. और दूसरी बात ये भी है ना कि horizontal velocity remains constant. That means the horizontal velocity at this point p is going to be same as this horizontal velocity at this initial here. इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है तो वो उसके साथ ही बराबर रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे हमको vx इक्वल टू ux मिलता है, ठीक है. एंड फॉर वर्टिकल मोशन, मतलब मोशन अलोंग y एक्सिस, so if you consider the motion along y axis, then it is going to be a purely accelerated motion, uniformly accelerated motion है वो. और at the same time kinematical equations can be used in it, and acceleration due to gravity is acting on the body continuously, and that's why the vertical velocity doesn't remain constant, but it decreases in the initial first half and then goes on increasing in the negative side in the later half, remember. And this happens, so if we apply the first kinematical equation on this vertical motion, which is v equal to u plus at, so v can be replaced by this vy here, and u can be replaced by uy here, so as to get this as vy is equal to uy minus gt, correct? And if we use this second kinematical equation here in the vertical motion, then we get that s equal to ut plus half at square, but this s has to be replaced by y here, and u can be replaced by uy here. ये जो uy है उससे आपको रिप्लेस करना होता है. और तीसरा जो है ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, तो एक्सेलरेशन के बदले हमको क्या डालना है यहाँ पे? g डालना है, g, दैट इज माइनस g एक्चुअली. सो इससे हमको ये इक्वेशन मिल जाता है, देखो, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 रिकॉर्ड किया था, करेक्ट है. और एट द सेम टाइम थर्ड किनेमेटिकल इक्वेशन कैन आल्सो बी पुट हियर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. But here v can be replaced by this vy once again, because we are considering the vertical motion, right? And u can be replaced by uy once again, because we are considering the vertical motion. And a can be replaced by minus g, and this s can be replaced by this y here, correct? So replacing all these quantities here in the equation, we are going to get this
थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन इन द वर्टिकल मोशन. ओके, और मैंने ये भी बताया था लास्ट टाइम कि these three equations are going to be actually the basis for द होल वर्टिकल मोशन. ठीक है ना, तो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यही सारे जो इक्वेशंस है वो एक तरह से बेसिस बनने वाले हैं. ओके, सो लेट अस टेक दिस होल स्क्रीन in the next page so that we can. ओके, तो ये पूरा जो है वो बिल्कुल साइड में रखो और इसको पूरा याद रखो ठीक से. ठीक है, ठीक है. चलो अभी हम यहाँ पे देखेंगे हाउ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ट्राइजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ओके, सो okay, so now we are in a position to find out the expression for trajectory of this projectile. So see, उसके लिए हमको क्या करना है, तो सिंपली हमको दो इक्वेशंस कंबाइन करने हैं. देखो कौन से. तो सबसे पहला ये इक्वेशन जो कि हमको यहाँ पे मिला हुआ है x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, और दूसरा इक्वेशन ये जो सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन हमारे पास है वर्टिकल मोशन के अंदर का, ये दोनों इक्वेशंस हमको सिर्फ कंबाइन करने हैं, जिससे हमको क्या मिलेगा, द इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल. मतलब कौन से पाथ से ये पार्टिकल गुजरता है, तो वो पाथ हमको मिल जाएगा आराम से अगर हम ये x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी एंड y इक्वल टू यू एक्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशंस को अगर इक्वेट किया या यूज किया, कंबाइन किया, तो देखो कैसे. तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि वी हैव द इक्वेशन that is in horizontal motion. तो horizontal motion के अंदर क्या होता है हमको पता है ऑलरेडी. Displacement is velocity, horizontal velocity is constant. Since ux is constant, we can say ux यहाँ पे constant है, तो उसकी वजह से क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, the displacement of the body is actually equal to the velocity into टाइम. ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे मिलता है x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम t, जिससे ही हम निकाल सकते हैं यहाँ पे टाइम t का वैल्यू. देखो ठीक से, व्हाट कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम t हियर. t का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो ठीक से, ये बनेगा x अपॉन यू एक्स. आर यू कन्विंस्ड अप टू दिस? Okay, t is going to be actually equal to x upon ux. We can give this as equation number 1, right? Okay, let us move further. Okay, अभी भी आ रहा है प्रशांत साउंड? You can just unmute yourself. Is some noise you are hearing from my mic? Yes. So basically, x is equal to ux into t, where t is actually going to be equal to x upon ux, right? Yes. So here we have found out this value of time, no doubt.
अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि ये वाला इक्वेशन हमको यूज करना है। देखो ठीक से, विच इज देयर इन द वर्टिकल मोशन। ठीक है, नाउ इन वर्टिकल मोशन, तो देखो ठीक से वर्टिकल मोशन में हम क्या बोल सकते हैं। तो देखो ठीक से, तो सबसे पहली बात कि ये जो इक्वेशन, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन जो है वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। एंड वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है तो वो बन रहा है y, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर का इनिशियल वेलोसिटी जो हम बोल रहे हैं यू वाई इंटू टाइम t माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ये हमको मिल रहा है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 2। Okay, or just need not to give this as equation number 2, but we have to combine this equation with the equation number 1. So put the value of t from equation 1, which is x upon ux, here in this equation number 2. Okay, तो एक अगर हम यहाँ पे t के बदले x upon ux अगर डाल देंगे यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा देखो, तो वो हमको मिलेगा y is equal to uy into t, where t is actually going to be x upon ux and minus half into g into t square, where t is again is going to be x upon ux the whole square. Correct here? Yes. So here we can see, if we simplify this still further, then we can get it as uy. अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, x into uy upon ux, right? Okay, minus, here it is going to be half as it is into g as it is, and that is multiplied by x upon ux का whole square, जो बन गया x square upon ux का whole square. Okay, x का भी square और ux का भी square. But now we have to use that. देखो यहाँ पे, ये जो u को जब हम रिजॉल्व करते हैं, देखो ठीक से, अगर u को हम रिजॉल्व करेंगे, सपोज जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बोला था, तो अगर इस u को हम रिजॉल्व कर रहे हैं तो उसके जो दो कंपोनेंट्स हमको मिलते हैं, तो जस्ट वेट अ मिनट। यस, ओके, तो बेसिकली ये हमने अभी देखा कि y इज इक्वल टू यू वाई अपॉन यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन यू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। करेक्ट है? ठीक है, बट अभी जैसे कि हमको पता है ऑलरेडी कि अगर ये u है, जो इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं, तो वो अगर u है, तो दिस u कैन एक्चुअली बी रिजॉल्व्ड इनटू टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो इस तरह से हम लेते हैं, जो इसमें से एक कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हुआ करता है, जिसको हम यू एक्स बोलते हैं, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हुआ करता है, जिसको हम यू वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इनका अगर एंगल, ये यू का जो एंगल है, तो वो अगर हमको पता है, इफ इट इज थीटा लाइक दिस, then we can find out this ux and uy in terms of u and theta. जैसा कि हमको पता है ux is actually denoted by u cos theta and uy is actually expressed as u sin theta. अभी I hope कि all of you know this, why this happens actually. तो ये क्यों होता है ऐसा, ये सभी को पता है ऐसा मैं assume करता हूँ। अगर नहीं पता है तो चैट बॉक्स में डालो, मैं तुरंत एक्सप्लेन करता हूँ 1 मिनट में। why this u is resolved into two components and why this ux happens to be u cos theta and how this uy happens to be u sin theta। अगर पता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम अभी तुरंत एक्सप्लेन करेंगे। तो जस्ट पुट इट इन चैट बॉक्स इफ यू नो और डोंट नो। ओके ठीक है, चलो, तो देखो ठीक से यहाँ पे होता क्या है कि अगर ये u है और इस u को अगर हमको सपोज रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट्स में, ठीक है, तो उसमें से ये वाला कंपोनेंट हमारा वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है, वाई वाला कंपोनेंट जो है उसको हम यू वाई बोल सकते हैं, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है,
उसको हम ux बोल सकते हैं। चलो ठीक है। अभी देखो होता क्या है ना कि अगर हम ये uy वाला जो कंपोनेंट है उसका बिल्कुल पैरेलल साइड अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये देखो दिस इज द पैरेलल साइड हियर, यस। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी ये जो है इसको भी तो हम ui बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। सो दिस इज ऑल्सो यूर ui, नो डाउट। ओके, तो अभी इसमें इस ट्राइंगल के अंदर अगर देखो ठीक से तो क्या पता चलता है तुमको, cos थीटा इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू adjacent, this adjacent upon hypotenuse which is u here, right? So therefore we can say this cos theta is equal to ux upon u, बराबर। and at the same time sin theta can be written to be equal to what, opposite upon hypotenuse। तो ये देखो ये opposite and that is to be divided by this hypotenuse, so that we get this as uy upon uy upon u, correct है? Yes, so here it becomes ux which is equal to u cos theta and uy is going to be equal to u sin theta। अभी समझा कैसे आया ये? ओके, ux के बदले हमको क्या रखना होगा, u cos थीटा रखना होगा, और बिल्कुल, और यहाँ पे uy के बदले हमको u sin थीटा रखना होगा। ओके, और सेम वही बात हम v के बारे में भी कर सकते हैं। ये देखो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है, मतलब ये जो फाइनल वेलोसिटी है v, तो उसको भी अगर सपोज हम रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में तो उसका भी थीटा अलग होगा, नो डाउट। लेकिन दो कंपोनेंट्स जो बनेंगे तो ये vx इक्वल टू क्या बनेगा, v cos थीटा बनेगा, और vy इक्वल टू क्या बनेगा, v sin थीटा बनेगा। लेकिन वो थीटा अलग होगा, याद रखो ठीक से, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, थीटा विल बी डिफरेंट, क्योंकि ये u जितना एंगल कर रहा है वर्टिकल के साथ, तो v का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो अलग होगा कि नहीं। हॉरिजॉन्टल के साथ u का हॉरिजॉन्टल के साथ जो बना हुआ एंगल है और v का जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ एंगल है वो बिल्कुल अलग होगा। तो इसलिए ये हमको समझना अच्छी तरह से। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू how this u can be resolved into components and how this ux happens to be u cos theta and uy happens to be u sin theta? Okay, so if we use all these things here in this equation, then we can be able to get that। okay, तो यहाँ पे फिर हमको ये मिल जाएगा, तो इसमें यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, बट as we know that ux is actually going to be u into cos theta and uy is going to be u into sin theta। okay, so if we suppose एक मिनट, yes, just put all these values here in this equation and see what happens। तो अगर ये सब वैल्यूज हमने यूज किया यहाँ पे तो ये y कितना मिलेगा हमको, तो देखो y will actually be equal to x into what is this ux here, sorry uy here, ये देखो u sin theta से हमको उसको रिप्लेस करना है, तो वो बन गया u into sin theta। ओके, and that is to be divided by here ux which is u cos theta which is to be replaced here, so ये बन गया u cos theta। okay, and then minus here it is half as it is into g also as it is, x square is also as it is, and here ux square, so u can be written to be u cos theta and उसका स्क्वायर हमको करना है, करेक्ट है? तो ये हो गया स्क्वायर। तो जिसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो देखो यहाँ पे तो सीधा ये हमको पता चल रहा है कि दिस u sin थीटा अपॉन u cos थीटा, इसमें से u तो पूरा कैंसिल हो गया बिल्कुल, बाकी ये जो y है तो y के लिए हम लिखेंगे x इंटू, अब ये भी तुमको पता होगा कि sin थीटा अपॉन cos थीटा मतलब क्या होता है, tan थीटा, बिल्कुल। सो हियर वी गेट दिस एज x इंटू tan थीटा एंड माइनस हाफ इंटू g। अच्छा, ये g को ऊपर डाल देंगे तो भी चलेगा, ये देखो ये बन गया g इंटू एक्स स्क्वायर, पूरे न्यूमरेटर में वो जी एक्स स्क्वायर आ गया, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखो इससे
तो यहाँ पे u cos थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है u स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। So this is going to be the final equation for the trajectory of projectile. देखो ठीक से यहाँ पे this is actually going to be the trajectory equation of trajectory of projectile. Yes, and this equation can be asked in exam for 4 marks. Remember, देखो क्या क्या किया हमने, see from start. First of all, we have seen the for horizontal motion. तो horizontal motion के लिए हमको पता है already कि ux is constant. So we can use the simple formula, that is displacement equal to velocity into time. And in horizontal direction, we know that displacement is x and velocity is ux and time वो तो horizontal vertical होता ही नहीं है, time तो time होता है, तो इसलिए x is equal to ux into t, ये equation हमको मिल गया, जिसको थोड़ा रीअरेंज करके इस ux को अगर नीचे लेके जाएंगे वो डायरेक्शन में, वो साइड में, तो इससे हमको ये मिल जाता है that is t is equal to x upon ux, करेक्ट है। तो ये हमको मिल गया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देखा नाउ इन वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के अंदर अगर हमने सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया तो उससे हमको मिलता है y is equal to uyt minus half gt square, करेक्ट है। and then we have used this t equal to x upon ux in this equation, जहाँ पे भी हमको t दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे एक t है और यहाँ पे एक t है, तो इस t के बदले हमने क्या किया, x upon ux डाल दिया, बिल्कुल, और इसको सिंप्लीफाई किया आगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिला, देखो y is equal to x into ux upon uy upon ux, करेक्ट है। तो ये हमको मिल रहा है, और दूसरा यहाँ पे मिल रहा है हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये यूज किया कि बट यू एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, हमको पता है वो कैसे, ओके। तो यूजिंग दिस यू वाई इज एक्सप्रेस्ड एज यू साइन थीटा हियर and this ux is going to be expressed as u cos theta here, right? And this ux is again expressed as u cos theta, the square is kept as it is, right है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, देखो ठीक से नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे u को कैंसिल कर दिया, और उसके बाद फिर ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो वो tan थीटा बन गया, राइट। तो x इंटू टैन थीटा माइनस हाफ इंटू, अब यहाँ पे u का भी स्क्वायर और cos थीटा का भी स्क्वायर, जो कि एक्चुअली u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हमको मिल गया, बिल्कुल। सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द फाइनल फुल एंड फाइनल इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, रिमेंबर, ओके। ये इक्वेशन अगर चाहिए तो लिख के लो या तो स्क्रीनशॉट निकालो, जल्दी करो, so that we can move to the next topic in this chapter. If you want, I can just reduce it slightly so that you can take the screenshot properly. Okay, इसका screenshot ले लो फटाफट। और एक्चुअली इक्वेशन जो है, मतलब हाँ डायग्राम वगैरह उसके लिए जरूरी होगा, नो डाउट, तो याद रखो ठीक से। Yes, now let us move to the next topic in this chapter, that is about how to find out the range of projectile. Okay, इस projectile का हमको range ढूंढ के निकालना है, दूसरी बात हमको height of projectile भी ढूंढ के निकालना है, और तीसरी बात जो है तो वो हमको time of flight भी ढूंढ के निकालना है। Let us try this one by one. Okay, तो एक एक करके हम ये सारे जो चीजें हैं तो वो निकालते जाएंगे, चलो ठीक है। सबसे पहली बात, ये फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, देखो ये जो पूरा है ये स्क्रीन एज इट इज कॉपी करके लेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे, ताकि हम उसको यूज कर पाए। ये समझा ना, मैं ये स्क्रीन क्यों कॉपी करके ले रहा हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस स्क्रीन गिव्स अस एन आइडिया अबाउट एवरीथिंग। तो ये जो है ये एक ही स्क्रीन यूज करके तुम पूरे चैप्टर के अंदर का कोई भी डेरिवेशन कर सकते हो, बिल्कुल। तो पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है।
चलो, तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा हम ऐसा करेंगे। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं। यस, सो यहाँ पे अभी हमको जो है इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढ के निकालना है। ओके, लेट अस सी how to find out the equation of time of flight. Yes. How can we get the equation of time of flight? What we can say? You can tell me. How will you get the equation of time of flight? कौन से इक्वेशन में से तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा? चेक करो। देखो, दिस इज द फर्स्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। तो देखो ठीक से, ये बिल्कुल दिमाग में फिट करके लो कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए तुमको ये वाला इक्वेशन यूज करना है। ओके, तो वी नो दैट okay, we have the first kinematic equation in projectile motion is expressed as Vy is equal to Uy minus G into T, करेक्ट है? चलो ठीक है, ये तो हमारे पास है ऑलरेडी, नो डाउट। बट एट द सेम टाइम वी नो दैट, देखो यहाँ पे हमको पता है ऑलरेडी कि when the projectile reaches at its highest point, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो प्रोजेक्टाइल जाता है तो उस समय उसका वेलोसिटी जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट उसका जीरो बनता है। देखो, इफ यू सी एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, देखो ठीक से कि इसका जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल का, तो वो कैसे होगा, ऐसे होगा। देखो, इस डायरेक्शन में होगा, समझ सकते हो ठीक से? दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द एट द हाईएस्ट पॉइंट, which if we resolve in two components, then its vertical component will be zero, but the horizontal component only will be non-zero. तो ये जो horizontal component है, तो वो यहाँ पे इस तरफ उतना ही रहेगा जितना वो velocity already है, but vertical component जो है वो तो zero ही रहेगा, vertical है ही नहीं उसका component। देखो ठीक से, तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि in case of this vertical projectile motion at the highest point, the horizontal component is going to be same as this same as the full velocity। मतलब उसका जो velocity है वो सिर्फ horizontal ही होता है, vertical बिल्कुल नहीं होता है, vertical velocity होता ही नहीं है उसको at highest point। ओके, तो ये बात अगर हम ध्यान में रखते हैं तो उससे हमको ये यूज करने आएगा कि at the highest point what happens is the vertical velocity becomes zero। ये बात हमको समझनी है। तो देखो यहाँ पे when when the projectile is at highest point, जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो उस समय क्या होता है, तो आपको ये पता है कि Vy becomes actually zero and T becomes actually equal to Ta। समझा कैसे? क्योंकि वर्टिकल ये जो है प्रोजेक्टाइल को यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जो टाइम लगता है उसको ही तो हम बोलते हैं
टाइम ऑफ एसेंट। याद है लास्ट टाइम बताया था, टाइम ऑफ एसेंट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट और द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट हियर। That's why this TA stands for time of ascent. Remember, if you put all these values here in this equation, then we can get this as 0 is equal to uy minus g into TA। करेक्ट है क्या? ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा। तो हम ये जो g into TA जो है, तो उसको इस तरफ लेके आ सकते हैं ये साइड में, जिससे हमको मिलेगा g into TA which is going to be equal to uy। करेक्ट, and hence we can get this TA which is equal to uy upon g, बराबर। and this is actually going to be the expression for time of ascent। but अब यहाँ पे इसका next part जो है वो मैं यहाँ पे करता हूँ, चाहिए तो ठीक है। but we know that time of flight is actually going to be 2 times of time of ascent। याद है ना, जो लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो पूरा जो टाइम लगता है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगता है पूरा, तो वो टाइम ऑफ एसेंट के मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगता है तो उसके डबल हुआ करता है, 2 टाइम्स हुआ करता है। तो दैट्स व्हाई वी हैव सीन हियर दैट t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ta। करेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे ये जो ta है तो वो अगर डाल देंगे, उसका वैल्यू जो है यहाँ पे डाल देंगे, तो हमको मिलेगा t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ uy upon g। This is actually going to be the formula for time of flight, which can be expressed as 2 times of uy upon g। Correct है? Yes. So this is going to be the formula for time of flight. But as we know that अभी अभी हमने देखा था कि uy जो होता है ना, uy वो हमेशा u into sin थीटा हुआ करता है। याद है अभी जैसे हमने अभी देखा था। तो अगर वो यूज करेंगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट t will actually be equal to 2 times of u sin theta and that is to be whole divided by g। That's it। So this is actually going to be the formula for time of flight। I will repeat it again। It is simply 2u sin theta upon g। Okay, g is the gravity, acceleration due to gravity। So this is actually going to be the formula for finding this time of flight। See here how we have derived it। सबसे पहले क्या किया हमने, ये देखो ये पूरा डेरिवेशन जो है वो पहले ये पार्ट, फिर उसके बाद ये पार्ट और उसके बाद ये पार्ट, ऐसा पूरा डेरिवेशन है ये। 3 मार्क का डेरिवेशन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन दैट द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन गिव्स दैट v is equal to u plus at। नॉर्मल काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, v equal to u plus at है। बट यहाँ पे v के बदले क्या रखना है हमको, vy। ओके, u के बदले क्या रखना है, uy, और a के बदले माइनस g, जो कि हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, एंड देन we have to use the fact that when the projectile moves to the highest point, what happens is vy becomes 0। ओके, ये सबको समझा के ठीक से। why vy becomes 0 at highest point? Because the velocity of the projectile at highest point is purely horizontal like this, and it has no vertical component at all, and that's why its velocity will be considered to be vy at 0 at highest point। and since its velocity is going to be 0 at highest point, and what is the time at that time, तो उस समय जो टाइम है तो वो टाइम ऑफ एसेंट के बराबर हुआ रहेगा, बराबर। तो वो t के बदले हमको क्या रखना है, ta रखना है, और vy के बदले 0 रखना है। तो ये देखो इस vy के बदले हमने क्या किया, 0 रख दिया, और t के बदले क्या किया, ta रख दिया। ओके, तो जिससे ये 0 मिल गया हमको, 0 इक्वल टू uy माइनस gta मिल गया। अभी इस g इंटू TA को हमने शिफ्ट किया वो साइड में, जिससे वो पॉजिटिव बन गया। देखो ठीक से यहाँ पे, सो इससे ये पॉजिटिव बन गया, और ये हमको मिला g इंटू TA इज इक्वल टू सिंपली uy हियर। जो uy यहाँ पे बचा हुआ था वो एज इट इज रखा। अभी ये g को हमने नीचे डाल दिया, वो साइड में शिफ्ट कर दिया, जिससे वो बन गया TA इज इक्वल टू uy अपॉन g। ओके, then we have seen that this TA is nothing but the time of flight, but when we double this time of flight, then and only we can get this time of ascent। just इस time of ascent को जब हम डबल करते हैं तब जाके हमको क्या मिलता है, time of flight मिलता है। so this time of flight is going to be double of time of ascent, and hence we have put this value of time of ascent here,
and get this as 2 times of uy upon g is going to be t. So टाइम ऑफ फ्लाइट का ये एक फॉर्मूला तो हमको मिल गया आराम से, दैट इज u t is equal to 2 uy upon g, नो डाउट. एंड देन uy जो है वो u sin थीटा के बराबर हुआ करता है. तो ये बात अगर हमने यहाँ पे यूज की तो इससे हमको ये 2 u sin थीटा अपॉन g ये फॉर्मूला मिल जाता है, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फाइनल फॉर्मूला कहलाता है. So remember, this is going to be actually the final formula for time of flight. Okay? तो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, so that we can move to the next. I think time खत्म हो गया है. So just we'll stop here. Two more derivations are left in this section. That is about the expression for maximum height of projectile, and the second one is the range of projectile. तो जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, रेंज इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल एंड मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल. ओके, तो इसके हमको डेरिवेशंस करने हैं. अभी तक हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन किया, और इससे पहले हमने जो प्रोजेक्टाइल का जो ट्रैजेक्टरी होता है तो उसका भी हमने एक्सप्रेशन ढूंढ के निकाला. इधर गया ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन. This is the equation of trajectory. Okay, चलो ठीक है. So let us stop here. Okay, thank you all of you.